अतिथि सब आप लोगों को सब कुछ अपने बारे में इस इंजीनियरिंग एसोसिएशन के बारे में आप लोग को बताएंगे। साथ ही साथ आप लोग को थोड़ा एक्टिव होना होगा, आगे बढ़ना होगा। हम लोग का जो भी आज इस हमारे कॉलोनी में जो कमी महसूस हो रहा है, ये लोग हम लोग उसके बारे में बताएंगे। हम लोग को क्या कमी होने के कारण आज हमारा कॉलोनी बहुत पीछे चल रहा है, ताकि साथ ही साथ हम लोग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हम लोग पीछे जा रहे हैं। हम लोग को आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए हम लोग को पहले अपने आप को मजबूत करना होगा। कॉलेज का मेन पावर के ऊपर रहेगा, उसका प्रोडक्शन के ऊपर रहेगा, उस कॉलेज का कितना मेन पावर है उसके ऊपर रहेगा। ये हम लोग को विस्तार से मैनेजमेंट से भी जानना है इसी के बोल के हम बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मैन पावर बजट में 20-21 में है उसको लेने का, तो कुछ हम लोग को हासिल हुआ। और मैन पावर बजट नहीं है वो तो सब जगह जानते हैं, यही बात कहता है कि मैन पावर बजट नहीं है। तो मैन पावर बजट नहीं है ये बोल देने से तो नहीं होगा। मैन पावर बजट नहीं है लेकिन उसमें काम कर रहा है 20 आदमी, रिक्वायरमेंट देखा है कि 8 आदमी का, तो 12 आदमी। इसका मतलब क्या घूर के खा रहा है कि काम कर रहा है? उसके बावजूद भी बिना हेल्पर को मिस्त्री में खटाओ, ये सब तो। लेकिन वो होगा कब? जब आप जितना प्रेशर दीजिएगा, तो प्रेशर कब यूनाइट होकर के आपको थोड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। इस आंदोलन के लिए ये सप्ताह हमारा जो नेक्स्ट वीक है, सोमवार से शनिवार तक, ये बड़ा क्रूशियल समय है, जिसमें हम लोग को हर एक कोलेरी का एक अपने कोलेरी में एक मीटिंग करके, चाहे गेट मीटिंग करके, चाहे जैसे भी हो, उसको एक साथ संगठित होकर हम लोग को हर एक मेंबर बताना पड़ेगा, जितने भी टाइप का ऑपरेटर है, कि भाई हम प्रमोशन डेजिग्नेशन के लिए ही हम लोग जो है सिमेवा को बनाए हैं। आप लोग सिमेवा को सहयोग करिए, काला बैच लगा करके हम लोग को सहयोग करिए। आपसे कोई भी पूछता है तो भाई हम इस मैटर पर प्रमोशन और डेजिग्नेशन के लिए हम सिमेवा के साथ है। आप देखिए हर एक आदमी तैयार हो जाएगा, वो चाहे मान लीजिए कि बत्ती घर का आदमी हो, चाहे वो कोई भी टाइप का ऑपरेटर हो, फैन ऑपरेटर हो, एसबीए हो, हॉलेज खलासी हो, पंख खलासी हो, सारा का सारा आपको जो है রেগুলাইজ 3% না দেওয়ার জন্য করছে, বিভিন্ন জায়গায় রেগুলাইজ করছে। কিভাবে ইনক্রিমেন্ট গুলোকে খাচ্ছে দেখুন। ক্যাটাগরি 1 থেকে 2 এ রেগুলাইজ করছে, ক্যাটাগরি 6 থেকে যখন টেকনিক্যাল সি করছে তখন প্লেসমেন্ট করে তার মনিটারি বেনিফিটকে লস করছে 3%। আবার ক্যাটাগরি 5 থেকে টেকনিক্যাল সি সুপারভাইজার করে দুটো ইনক্রিমেন্টকে লস করছে। কিভাবে লস করছে? আমাদের সারা চাকরি জীবনে কারো দুটো কারো 3টে ইনক্রিমেন্ট কিন্তু লস হয়ে যাচ্ছে। যার জন্য আমাদেরকে যদি সংঘবদ্ধ না হই, আমরা যদি একসাথে না থাকতে পারি, তাহলে কিন্তু আমরা এই লড়াই লড়তে পারবো না। আর আপনারা যারা কমজোর ভাবছেন এটা কি ওটা কি, আরে এটা একটা নন পলিটিক্যাল প্ল্যাটফর্ম। আপনি যে কোনো পার্টিতে থেকে এই অ্যাসোসিয়েশনকে করতে পারেন, এমন কোনো মানে নাই যে আমি ওই অ্যাসোসিয়েশন এবং ওই পার্টিকেও আপনাকে বলতে হবে যে না তুমি আমার কাজ কেন করবে না, আমি তোমার দলে আছি। এটা তো আমার অ্যাসোসিয়েশন, আমার তো কোনো কারোর সঙ্গে সম্পর্ক নেই। আমরা নিজের লড়াই লড়ছি, ওকে দিশাও দেখাচ্ছি যে আমরা এই দিশাতে চলছি, আপনি এইটার ব্যবস্থা করুন। আমরা কি পেয়েছি? আমরা যদি জেবিসিসিআই আমাদের কিছু একটা ব্যবস্থা করতো, যে ভালো মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ দিত, তাহলে আমাদের ছেলেপেলেরা সেখানে পড়তে পারত। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমরা পেয়েছি? আমরা সব পয়সার পেছনে ছুটেছি, ভালো মেডিকেল কলেজ পাই নাই, ভালো ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ পাই নাই। আমাদের কি চাই? পয়সা চাই, খালি পয়সার পেছনে। ক্যাটাগরি 1 এত বেসিক, 2 এত বেসিক, এইসব করেছি আমরা। কিন্তু আমরা যদি ভালো পরিকাঠামো চাইতাম, তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের এবং আমাদের ছেলেদের উন্নতি হতো। যার জন্য আমরা চাইছি এই লড়াইটাকে আগে করতে। আপনারা সবাই একজোট হন, আপনি দেখতে পাবেন, আপনার কাছেই দেখতে পাবেন। যেদিন আপনারা সবাই একজোট হতে পাবেন, আপনারা দেখবেন যে ম্যানেজমেন্ট আপনার কাছে ঘেঁষছে, ম্যানেজমেন্ট আপনাদেরকে বলছে যে না না বিভাগ কলিয়ারিটা তো চালাতে হবে ভাই, তো আপনারাও সবাই সহযোগিতা করুন। ইউনিয়নও আপনাকে বলবে যে না না ঠিক আছে আপনারাও সহযোগিতা করুন। তাহলে আমিও চাইছি যে আগামী 6 সেপ্টেম্বর থেকে যে 6 দিনের যে আমাদের কালো ব্যাচ করে যে আমরা প্রতিবাদ করব, সেইটা যেন প্রতিটা কলিয়ারিতে বেশিক্ষণ সময় নেয়, 8 ঘন্টা 45 মিনিট এক জায়গায় দাঁড়ালেন, সিমেওয়া জিন্দাবাদ, ইনকলাব জিন্দাবাদ, এবং যার যা ছোটখাটো বক্তব্য বললেন, এবং কলিয়ারিটাকে যদি ঘুরতে মনে হয় ঘুরলেন, ফটো তুললেন এবং ফটোটাকে পোস্ট করলেন, তাহলে ম্যানেজমেন্টও বুঝতে পারবে যে হ্যাঁ ভাই এরা একজোট হয়েছে।
যেই মুহূর্তে আপনারা গোটা এরিয়া একজোট হয়ে যাবেন, যেই মুহূর্তে আপনারা বলতে শুরু করবেন, সেই মুহূর্তে আপনি দেখতে পাবেন যে আপনার রেজাল্ট কি, আপনার রেজাল্ট কিভাবে আসছে। সীমা গঠন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জেকে নগরে আপনি দেখেছেন টেন্ডেলদের জমাদারের প্রমোশন করা হতো, কিন্তু না, টেন্ডেলদের 18টা টেন্ডেলকে প্রমোশন করা হয়েছে জেকে নগর কলিয়ারিতে। কি জন্য? যে টেন্ডেলরা বলেছিল যে না, আমাদেরকে না করলে আমরা ছাড়বো না, যার জন্য টেন্ডেলদের প্রতিকার করা হয়েছিল, 18টা টেন্ডেলকে প্রমোশন করা হয়েছিল। আমিও চাই যে আপনারা একজোট হন এবং একজোট হয়ে সিনেমার যে পরিকল্পনা এইটাকে ভালোভাবে আপনারা প্রদর্শন করুন এবং ম্যানেজমেন্টকে একটা প্রতিবাদ জানান। এইগুলি আমি আমার বক্তব্য সমাপ্ত করছি। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, ধন্যবাদ। বিরোধ প্রদর্শন করবো। প্রত্যেকটা কোলেরই প্রত্যেকটা ইউনিট নিজের নিজের ইউনিটের বিরোধিতা করবে এবং এরিয়া কমিটি তার নিজের জায়গাতে এরিয়াতে গিয়েও বিরোধিতা করবে এবং সবাইকার সঙ্গে আমি সবসময়ের জন্য রাজি আছি, সবসময়ের জন্য থাকতে রাজি আছি। আপন মিটিংটা এই আগামী সপ্তাহটা পুরোটাই সময় পাচ্ছেন, নিজের নিজের কোলেরিতে একটা করে মিটিং করুন এবং পরের 6 তারিখ থেকে এবং 11 তারিখ পর্যন্ত, সেপ্টেম্বরের 6 এবং 11 পর্যন্ত, 6 থেকে 11 পর্যন্ত কালো ব্যাচ করে আমরা ধ্যান আকর্ষণ করবো ম্যানেজমেন্টের এবং এটা হচ্ছে আমাদের ম্যান পাওয়ার বাজেটের বিরোধিতা করার জন্য। এই বলে আমি আমার ছোট্ট বক্তব্য শেষ করছি। इसका जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा बोल के ये लोग नहीं भेजता है, तो वो आपको लड़ाई लड़ने होगा। अब ये जो एक ठो सुपरवाइजर या एक ठो फोरमैन से कोलियरी चलता है, हमारा कोलियरी की घटना अचानक पीट मैनेजर हमको बोला जे देखिए किशोर बाबू रात से ब्रेकडाउन है, थोड़ा देखिए। हम बोला क्या हम किसी सरकार है? अगर ये ईसीएल मैनेजमेंट में दम नहीं है तो फिर आप क्यों नाराज हैं, आप क्यों लाचार हैं, आप क्यों नहीं इस बात को अभी तक समझा? आपको ये बात को समझना पड़ेगा। ईसीएल मैनेजमेंट आपके ऊपर शोषण इसलिए कर रहा है कि आप में विभाजन है। आप विभाजन को रोक दीजिए, शोषण ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। किसी एक इंजीनियरिंग कर्मचारी को सम्मान के साथ अगर खिलवाड़ करता है कोई भ्रष्ट अधिकारी, तो उसके खिलाफ में सारे लोगों को उठ खड़ा होना पड़ेगा। आपके माध्यम से हम लोग स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि स्टैंड कोलफील्ड के तकनीकी कर्मचारी किसी यूनियन के खिलाफ में यह संगठन नहीं बनाया है, किसी मैनेजमेंट के खिलाफ में यह संगठन नहीं बनाया है, वो अपने हित में यह संगठन बनाया है और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ में यह संगठन बनाया है। अगर यह किसी के विरोध में है तो भ्रष्ट अधिकारियों के विरोध में है, और जो भ्रष्ट अधिकारी है वो न केवल मजदूर को शोषण कर रहा है बल्कि वह हमारा उद्योग का भी दोहन कर रहा है, हमारा उद्योग का भी नुकसान कर रहा है। इसलिए ऐसे अधिकारियों के खिलाफ में यह संगठन का निर्माण हुआ। मित्रों, मैन पावर बजट किस चीज के लिए बनता है? श्रमिकों का गेनफुल यूटिलाइजेशन के लिए, मशीनों का बेहतर रखरखाव के लिए, मशीनों का बेहतर संचालन व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ताकि जो कंपनी ने उत्पादन के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है वह पूरा हो सके। जब मैन पावर सही नहीं होगा तो क्या उत्पादन लक्ष्य प्राप्त होगा? कैसे मशीन सही ढंग से चलेंगे? हम लोग कहते हैं कि तुम मैन पावर बजट गलत बनाते हो, फर्जी बनाते हो। कैसे? मैन पावर बजट जिस वित्तीय वर्ष के लिए तुम बना रहे हो, जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए बना रहे हो, तो उस फाइनेंशियल ईयर के प्रारंभ में मैन पावर बजट इंट्रोड्यूस हो जाना चाहिए। यानी अगर मैन पावर बजट 2021-22 के लिए बनाया गया है तो बजट 1 अप्रैल को आ जाना चाहिए। कहीं ऐसा देखा है कि आप छोटा सा पूजा भी करते हैं, जलसा भी करते हैं, तो हम बैठ के घर में पहले बजट बनाते हैं, कितना प्रसाद मिलेगा, कितना धूप मिलेगा, कितना पंडित जी को देना होगा। लेकिन ये कंपनी आज अगस्त महीना खत्म हो रहा है,
देश का मैन पावर बजट नहीं आया है तो आने वाला बजट फर्जी नहीं तो और क्या हो सकता है। ये मैन पावर बजट प्रमोशन और कैटेगराइजेशन को तो बात छोड़ दिया जाए, जो लोग काम कर रहे हैं उनको एज पर प्रेजेंट नेचर ऑफ जॉब उनको न डेजिग्नेशन मिल रहा है, न प्रॉपर कैटेगराइजेशन मिल रहा है। इससे फर्जी बजट और क्या हो सकता है। हमको समझना पड़ेगा प्रमोशन और कैटेगराइजेशन में अंतर। हम नहीं समझ पा रहे हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी हमारे अंदर में है। एक हेल्पर को फीटर बनाना, एक हेल्पर को इलेक्ट्रीशियन बनाना पदोन्नति समझ में आता है, लेकिन कैटेगरी से 4 करने में कौन सा पदोन्नति हो रहा है, 4 से 5 करने में कौन सा पद उन्नति हो रहा है, और 5 से 6 करने में कौन सा पदोन्नति हो रहा है। ये तो ग्रेडेशन है, ये कैटेगराइजेशन है। तो आज कंपनी कैटेगराइजेशन को भी प्रमोशन ट्रीट करके और हमारे सामने बहुत बड़ा रूप में पेश कर रहा है। मैन पावर बजट बोलते हैं, मैन पावर बजट जो कंपनी बनाएगी अगर सही ढंग से बनाएगा तो उसको माइन चलेगा, और सही ढंग से नहीं बनाएगा तो उसको माइन नहीं चलेगा। अगर उसको सही ढंग का मैन पावर बजट बनाना है तो आने वाले दिनों में हर कोलरी में इंजीनियरिंग कर्मचारियों के साथ बैठकर मैन पावर बजट बनाना होगा, वरना गलत मैन पावर बजट बनाकर लाएगा। जिस दिन लाएगा उस दिन हम उसको जलाएंगे और उसी दिन से उसका हम विरोध उस वक्त तक शुरू करेंगे जब तक उसमें सुधार नहीं आता। जब मैन पावर बजट ही मेरा प्राण है, जब मैन पावर बजट को ही मेरा जीवन बना दिया है, मैन पावर बजट से ही हमको प्रमोशन कैटेगराइजेशन प्रॉपर डेजिग्नेशन होना है, तो हम उसको क्यों इग्नोर करेंगे। आज तक आप लोगों ने इग्नोर किया है। हम सभी श्रमिक संगठनों से आग्रह करेंगे कि कभी ईसीएल का मैन पावर बजट 1,87,000 था, आज मैन पावर बजट 53,000 पर आ गया। कहां आप सोए हैं। मजदूर नहीं रहेगा तो किसके लिए आप यूनियन करेंगे। 1,87,000 जब मैन पावर था तो यूनियन का क्या दम था ईसीएल में। आज 53,000 है तो क्या दम रह गया। आपने बेच लिया। अगर आज 1,53,000 इसका मैन पावर होता 1,87,000 तो यहां के लोगों को, स्थानीय लोगों को, इस प्रदेश के लोगों को, इस देश के लोगों को जो भी श्रमिक रिटायर कर रहे थे उसके आधार पर नौकरियां मिलती। आप एक तरफ मैन पावर बजट सरप्लस करा दिया और दूसरी तरफ ठेकेदारी और आउटसोर्सिंग इस इंडस्ट्री में ला दिया। आप कल्पना करके देखें, विचार करके देखें कि आपको 60,000, 70,000, 80,000, 1,00,000 तनख्वाह मिल रहा है। ये पब्लिक सेक्टर की स्थापना हुई तो आप अच्छा खाए, बाल बच्चों को खिलाए, अच्छा से पढ़ाया लिखाया, अच्छों जगह में नौकरी करवाया। अब जो आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी जो यहां लागू हो रहा है उसमें 10,000, 15,000 पैसा मिलेगा। वो किसको मिलेगा। हमारे ही आपके भाई भतीजे होंगे, हमारे ही आपके लोग होंगे। आप सोच कर देखिए कि उस 15,000 में क्या खाएगा, क्या बाल बच्चों को खिलाएगा, कहां पढ़ाएगा। आज के युग में कहां हम चले गए। आज भी जरूरत है कि 53,000 जो मैन पावर ईसीएल का बच रहा है कम से कम यह सुरक्षित रहे। अगर यह सुरक्षित नहीं रहा तो आप वेज बोर्ड में लड़ाई किसके लिए लड़ रहे हैं। आप जेबीसीसीआई में किसको वेतन बढ़ाइएगा, किसको दीजिएगा वेतन जब कोई रहेगा ही नहीं। मैन पावर बजट केवल कैटेगराइजेशन और प्रमोशन के लिए नहीं है। यह तो कंपनी ने जबरदस्ती जोड़ दिया हमारा कैरियर ग्रोथ को। अब कहते हैं कि एक असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल, आप देखा होगा पहले इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर मींस ग्रेड ए होता था, टेक्निकल ग्रेड ए वो इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर होता था और वो डीजीएम से एथराइज्ड होता था। अभी क्या कर दिया, हमारे पास सुपरवाइजर सर्टिफिकेट है, हम असिस्टेंट फोरमैन हैं, लेकिन हमको वहां एथराइज क्या कर रहा है, एथराइज टू वर्क एज ए इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर। ग्रेड सी में हमको इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर बना दिया और जब 3
साल के बाद हमारा पदोन्नति का बात आया तो कहता है बी में तो रिक्तियां है नहीं, आपका होगा कैसे? हम बेज बोर्ड स्टाफ है, हमारा 8 घंटा ड्यूटी है और वायलेशन हम 24 घंटा का साइन कर रहे हैं। और तो पूरे कोलरी का एक ही सुपरवाइजर उसको वायलेशन साइन करते जा रहा है। फर्स्ट क्लास मैनेजर से भी बड़ा पद इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर असिस्टेंट फोरमैन को हो गया है। ये हाल है इस इंडस्ट्री का। सुपरवाइजरी स्टाफ बढ़ेगा कैसे? जब तक तय नहीं होगा कि कितना इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पर, कितना मैकेनिकल इक्विपमेंट पर, कितना सेक्शन पर एक इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर होंगे। जॉब डिस्क्रिप्शन में साफ लिखा हुआ है कैटेगरी 4 का इलेक्ट्रिशियन क्या करेगा, 5 का इलेक्ट्रिशियन क्या करेगा, 6 का इलेक्ट्रिशियन क्या करेगा, असिस्टेंट फोरमैन क्या करेगा, फोरमैन क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर क्या करेगा, जिसका खुद हमें ज्ञान नहीं। पहले हमको समझना पड़ेगा। हमारे पास 2 तरह की बातें हैं, 2 तरह की बातों को समझना पड़ेगा। एक, जो JVCCI, कोल इंडिया और ECL ने हमारा कैरियर ग्रोथ और वेलफेयर के लिए जो नीति तय कर चुका है वह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सबसे पहले इसको देखना। दूसरा यह देखना है कि कौन ऐसी समस्याएं हैं जो समस्याएं ये तीनों से बाहर है, जो तीनों से बाहर है उसको हमको हाईलाइट करना है। उसके लिए समय समय पर आंदोलन करना है, लोगों को बाध्य करना है। जब तक इस बात को हम नहीं समझेंगे, मित्रों, एक बात हम बहुत सुनते हैं कि यहां लोगों को काम कराया जा रहा है, एथराइजेशन भी दे दिया जाता है, उसको डेजिग्नेशन चेंज नहीं होता। तो एक लिस्ट बन जाना चाहिए हर कॉलोनी से, कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनका नाम क्या है, पर्सनल नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, प्रेजेंट डेजिग्नेशन क्या है, आज के दिन में क्या काम कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, उनको एथराइजेशन है कि नहीं, उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या है, एक बायोडाटा बन जाना चाहिए। और हर कॉलोनी का एक लिस्ट आना चाहिए कि किस कॉलोनी में कितने ऐसे लोग हैं जिनका डेजिग्नेशन कुछ है और काम और लिया जा रहा है। यह लिस्ट साफ होना चाहिए और यह लिस्ट मुझे 3 के पहले मिलना चाहिए। आज बहुत लोग कहते हैं कि शिमेवा से ECL में कई ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं जो कहते हैं हम बात नहीं करेंगे। उनका क्या दम है कि बात नहीं करेंगे? शिमेवा 1997 से ECL में है, थोड़ा कमजोर था, आज मजबूत हुआ है। जब कोल इंडिया बात करता है तो तुम क्यों नहीं बात करोगे, और जब तुम्हारा CMD बात करेगा तो तुम्हारा क्या औकात है कि तुम बात नहीं करोगे? ध्यानाकर्षण आंदोलन है, हम सभी वर्गों का ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं और धीरे धीरे सबका ध्यान आकृष्ट होना शुरू हुआ है। अभी केवल हम बात किया है, अभी केवल हम पोस्टर वार किया है, कार्यक्रम की केवल घोषणा किया है। आप समझ लीजिए कि हम आपके यहां बैठे हुए थे और आपके यहां ECL हेडक्वार्टर से फोन किया कि हम आपके साथ इस पर बात करना चाहते हैं, और उसने टेंटेटिव डेट दिया कि हम 4 तारीख को आपसे बात करना चाहते हैं। मैं कहा अभी मैं आम सभा कर रहा हूं कजरा में, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। सवाल बात का नहीं है, क्या बात करने से हो जाएगा आप हमको बताइए। हमसे कोई मत बात करो, हमारी जो समस्या है वो हल कर दो। हमको कुछ मत लिख के दो, प्रमोशन ऑर्डर कर दो, कैटेगराइजेशन ऑर्डर कर दो, जिनकी जो समस्या है वो हल कर दो, शोषण बंद कर दो। बहुत लिख कर दिया, JVCCI 1 से JVCCI 10 तक इतना मोटा ग्रंथ बना हुआ है, लिख के दिया हुआ है, पूरा मोहर मारा हुआ है। उसमें बहुत सारे ऐसे सर्कुलर हैं जो आज तक इंप्लीमेंट ही नहीं हुए, तो हम उसमें विश्वास नहीं करते। हम सब मजदूर हैं, तुम्हारा क्या दम है कि हमसे बात नहीं करोगे, हमसे बात किए बिना तुम माइन चला लोगे। और आज के दिनों में अगर ठीक करना है तो सबसे पहले अपना इंजीनियर को ठीक कीजिए, सबसे पहले उसको पैंट खोलिए। सबसे पहले अगर अधिकारी वर्ग में किसी को पैंट खोलना है तो उसको पैंट खोलिए और बोलिए कि तुम कैसे इस मैन पावर पर माइन को चलाने कह रहे हो,
और हमको चलाने कह रहे हो, तुम ऊपर बैठते हो और हमको खदान जाने कह रहे हो। सबसे बड़ा अगर कोई हमारा कैरियर ग्रोथ का दुश्मन है तो वो इंजीनियर है। अगर वो नहीं है तो हमारे साथ आवे और खुलकर बात करे कि हमारा वैल्यू नहीं है। हमसे बिना पूछे मैन पावर बजट बना लिया है। ये बात आपको समझना। एक बात और आपको स्पष्ट कर दे रहे हैं कि जब तक आप संगठित हैं तब तक आप इंजीनियरिंग वर्कर्स के एसोसिएशन के तहत हैं। जैसे ही आप विभाजित हो जाएंगे, अलग अलग बढ़ जाएंगे, आपकी शक्तियां छीन हो जाएगी। अब रहा एक दूसरे को समर्थन करने का, मदद करने का, बराबर ध्यान रखने का, तो आज मीटिंग था, आपका 9 बजे से मीटिंग था और मैं 8 बजे यहां उपस्थित था। तो आप सोच लीजिए कि मैं ज्यादा वादा तो नहीं करता, एक वादा केवल एक करता हूं कि हर लड़ाई में, हर मुसीबत में आपसे एक कदम हम आगे जरूर रहेंगे। क्या होगा क्या नहीं होगा, साथे रहेंगे, दोनों देखेंगे, दोनों समझेंगे। इसलिए मित्रों, लोग कहता हमको टूटना नहीं चाहिए। अरे हम टूटे हुए तो थे, अब तो जुटने के लिए आए हैं। और धान है तो खखरी होगा। 100% आजादी की भी लड़ाई में लोग साथ नहीं आए। उन बातों को छोड़ देना पड़ेगा। आंख मूंद कर इनकलाब, आंख मूंद कर जिंदाबाद बोलना पड़ेगा। यह संकल्प लेना पड़ेगा कि कोई बोले या ना बोले, हम बोलेंगे। कोई करे या ना करे, हम करेंगे। जब यह संकल्प हमारा हो जाएगा तो हम नेगेटिव चीज को क्यों देखेंगे कि जो हमको विरोध कर रहा है। हम हमेशा पॉजिटिव एंगल में देखेंगे कि कौन हमको सपोर्ट कर रहा है। कल तक हम अकेले थे, हर मजदूर अकेले था, एक को शोषण करता था, बाकी मुख दर्शक बना रहता था। अगर 100 में 5 भी मेरे सपोर्ट में बोल रहा है तो मेरी उपलब्धि है। इसलिए मित्रों, आप लोगों को एहसास कराना पड़ेगा कि 6 सितंबर से काला बिल्ला सारे तकनीकी कर्मचारी लगाएंगे। हर कॉलोनियों में गेट मीटिंग हो जाना चाहिए 3 तारीख को। हर कॉलोनियों में 3 तारीख को गेट मीटिंग हो जाए और अपने साथियों के बीच में आपका जो समस्या है उसका लिस्ट बनना शुरू हो जाए। कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास वार्मेंट्स परमिट है, कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट है, उनको चांसेस नहीं दे रहा। हमको देखना पड़ेगा। एक तरफ इसका शॉर्टेज है, दूसरे तरफ सरप्लस किए हुए है। हमको शॉर्टेज जहां होगा हम जाएंगे वहां। हम कैरियर ग्रोथ अपना क्यों बाधित करेंगे। इन तमाम बातों को समझना पड़ेगा। और इंजीनियरिंग कर्मचारी शिमेवा का यूनियन मुंह से नहीं होगा। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, कागज कलम में आना पड़ेगा। एक एक कर्मचारी का आपको डिटेल्स रखना पड़ेगा। हम इंजीनियरिंग कर्मचारी, हमको कहता है कि एसएलयू ले लो, हम एसएलयू लेंगे। अरे एसएलयू उसके लिए बना था, सर्विस लिंक अपग्रेडेशन उसके लिए बना था कि जिसके लिए कोई कैडर स्कीम नहीं था, जिस कैटेगरी में बहाल होता था उसी में रिटायर हो जाता था। उसको बोला था कि कम से कम 3 ग्रेडेशन उसको हम करेंगे। हमको तो हेल्पर से मैकेनिक बनना है, फिर 4 में रहना है, 5 में रहना है, 6 में रहना है, सी में रहना है, बी में रहना है, ए में रहना है। यहां दुर्दशा है, 10-10 साल, 15-15 साल हेल्पर में रहेगा, तब कैटेगरी 4 होगा, उसके 10 साल के बाद 5 होगा, उसके 10 साल के बाद कैटेगरी 6 होगा, उसके 10 साल के बाद ग्रेड सी होगा, उसके 10 साल के बाद ग्रेड बी होगा और उसके 10 साल के बाद A1 होगा। परिणाम क्या होगा? परिणाम यह होगा कि हम बहाल हुए हैं और हमारा पोता 4 में नहीं चाल पाएगा। यह है इसका हमारा कैरियर ग्रोथ के लिए इसका कंपनी का योजना। मित्रों, जो दिखता है वह बिकता है। बिना रोए तो मां भी दूध नहीं पिलाती है। हम इंजीनियरिंग कर्मचारी किसी से झगड़ा करने नहीं आए हैं, लेकिन हम अपनी समस्या के लिए आवाज तो लगा ही सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, रो सकते हैं। हम लोग कुछ नहीं, एकजुट रहने की कोई जरूरत नहीं है। जब जब वो अत्याचार करेगा हम एकजुट हो जाएंगे, जब जब हमको तंग करेगा एकजुट करेंगे। यहां क्यों नहीं साल में एक बार डीपीसी होगा, और जो डीपीसी होगा एक साथ कैटेगरी 1 से लेकर ग्रेड ए तक के जितनी कॉलेजों में वैकेंसियां हैं उसका एक साथ डीपीसी क्यों नहीं होगा।
क्यों पिक एंड चूज होगा? डीपीसी के बाद पैनल क्यों नहीं साल भर जिंदा रहेगा? सीनियरिटी का क्यों नहीं ध्यान दिया जाएगा? जब एक कंपनी का रूल है तो यहां भी फॉलो होना चाहिए। एक बार आपने डीपीसी कर लिया, कभी इस डिविजन का कर रहे हैं, कभी इस कैटेगरी का कर रहे हैं, कभी उस कैटेगरी का कर रहे हैं। किसी का इफेक्टिवनेस मार्च हो रहा है, किसी का इफेक्टिवनेस अप्रैल हो रहा है, किसी का इफेक्टिवनेस मई हो रहा है। क्या कंपनी ने ऐसा निर्धारित किया है कि इस कंपनी में जब कभी भी हम किसी को प्रमोशन करेंगे तो उसका रेस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देंगे, नोशनल सीनियरिटी देंगे, नोशनल बेनिफिट देंगे? आप ग्रेड सी में मान लीजिए 10 यूनिट है, कोई फरवरी में करता है, कोई मार्च में करता है, कोई अप्रैल में करता है। जब सी से बी में जाएगा, जब एरिया लेवल पर उसका सीनियरिटी लिस्ट बनेगी तो क्या पोजीशन होगा? तो इन तमाम बातों को आपको समझना पड़ेगा। जब तक एक्सरसाइज नहीं कीजिएगा तब तक सिमेवा का आप सेक्रेटरी प्रेसिडेंट का काम नहीं कर सकते हैं। अगर बाकी मुंह से बात करना है तो उसके लिए बाकी संगठन है, वहां मुंह से काम चल जाएगा। यहां कागज कलम, मैन पावर बजट हर साल बनता है और हर साल आपको जनवरी से एक्टिव हो जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इस साल कितने लोग इंटाइटल हो रहे हैं, किस कैटेगरी ग्रेड में इंटाइटल हो रहे हैं। कंपनी बड़ी चालाकी करती है, ओवरऑल बोलता है मैंने 15% प्रमोशन और कैटेगराइजेशन का स्कोप दे दिया। वो करता क्या है? जिस कैटेगरी में हमारे आदमी इंटाइटल नहीं है उसमें वैकेंसी शो कर देगा और जिसमें इंटाइटल है उसमें सरप्लस कर देगा। ओवरऑल बताएगा कि हम तो वैकेंसी दिया है। तो हमको ध्यान रखना पड़ता है हर कॉलोनी को, हर एरिया को, कि किस कैटेगरी में वैकेंसी इस साल हमको कराना है। जिसमें ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोग हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा हमको वैकेंसी कराना होगा। और जो भी लड़ाई लड़ना होगा मैन पावर बजट अप्रूव्ड होने के पहले, यह ध्यान रखिएगा। मैन पावर बजट अगर अप्रूव्ड हो गया, बोर्ड का उसका मुहर लग गया, तो कॉमा बिंदु भी चेंज नहीं करेगा। इस साल हम लोगों ने, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हम लोगों ने पोस्टर के माध्यम से मैनेजमेंट को ध्यान आकृष्ट कराने का काम किया मैन पावर बजट का। इस वर्ष हम लोग समझ रहे हैं कि हमको वो सफलता नहीं मिलेगी जो हम चाह रहे हैं, जो हमारी जरूरत है, लेकिन एक निश्चित रूप से है कि इस बार उतना सफलता जरूर मिलेगा जो पिछले सालों में नहीं मिलते आया है। और आगे के लिए हम रास्ता प्रशस्त करेंगे। आगे के लिए हम 2022 टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। ये लड़ाई ईसीएल के तकनीकी कर्मचारियों का 2022 टेस्ट में सही ढंग से मैन पावर बजट बने, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि 21-22 का बजट करीब करीब वो फाइनल कर दिया है, इसलिए हम 21-22 में इतना जरूर ध्यान रखेंगे कि जो भी प्रोविजन दिया है उसका इंप्लीमेंटेशन सही ढंग का हो, पिक एंड चूज नहीं हो। सबका सीनियर डेट तय करे, जब भी प्रमोशन करेगा उसको इफेक्टिवनेस कब से देगा, एक सिस्टम बनाए। आप सिलेक्शन और प्रमोशन की बात हमारे लोग कर रहे थे, आप कैडर स्कीम को देखिए, बहुत सीधा सा फंडा है, उसमें कोई डिस्कशन की बात नहीं है। जिसमें सिलेक्शन लिखा हुआ है जिस पोस्ट में, उसमें रेगुलराइज करेगा। दिमाग में बसा लीजिए, सिलेक्शन जिसमें लिखा हुआ है, जिसमें डीपीसी लिखा हुआ है उसको प्रमोशन ट्रीट करना पड़ेगा, उसको प्रमोशन का बेनिफिट देना पड़ेगा। सीधा सा फंडा ये है। अब जेबीसीसीआई ने कहीं गलत लिख लिया, कहीं सही लिख लिया, वो एक अलग मसला है, हम उसमें सुधार की बात करेंगे। लेकिन जिसमें सुधारा हुआ है, अब फिटर को, इलेक्ट्रीशियन को रेगुलराइज करते हो और उसको तो मैं सिलेक्शन मान ले रहे। ये कंपनी कहता है पुराना केस है, 2010 में कर दिया, 12 में कर दिया, 15 में कर दिया, इस समय हम क्यों करेंगे? अरे 2010 में, 12 में, 8 में, 5 में अगर हमको ज्यादा पेमेंट दिए हो तो ऑडिट करा के काट रहे हो कि नहीं काट रहे हो? तो एक तरफा ऑडिट बंद करे ईसीएल। मजदूरों को केवल कटौती के लिए ऑडिट नहीं करे, बल्कि मजदूरों को वाजिब हक में छूटा हुआ है तो उसको भी ऑडिट करे और उसका भुगतान करे। ये बात करनी पड़ेगी। ये कह देने से पुराना हो गया,
तो पुराना हो गया तो एग्रीमेंट कर लो, न तुम हमारा काटोगे ना हम तुमसे मांगेंगे, वो समझौता कर लो अगर सरकारी कंपनी में तेरा दम है तो। मित्रों, यह सब इसलिए हो रहा है कि मजदूर यहां का यूनियनाइज नहीं रहा। हम बैंक की तरह नहीं रहे, हम स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की तरह नहीं रहे, हमारा यूनियन उसके लिए काम नहीं किया। आप देखते होंगे बैंकों में हड़ताल अनाउंस कर देता है, इतना तारीख से इतना तारीख तक बैंक बंद रहेगा, कर्मचारी काम पर ही नहीं आते। सरकारी कर्मचारी, स्टेट गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं उनका हड़ताल होता है, वो अनाउंस कर देते हैं। टीचर्स का हो या ब्लॉक में काम करने वाला हो, ड्यूटी नहीं आता। हमारा कैरेक्टर क्या है? हमको आप क्या बना के रखा? जब तक आप पीठ माउथ पर, इंक्लाइन माउथ पर 5 आदमी डंडा लेके खड़ा नहीं है तब तक हम हड़ताल नहीं किया। जब भी हड़ताल अनाउंस हुआ तो हम जरूर ड्यूटी में गया, कम से कम मेरा हाल बन जाता, बाकी के बने चाहे ना बने। तो ये जो हमारा कैरेक्टर रहा, ये मेरा दोष नहीं रहा। हमको यूनियन नहीं कर सका, इसलिए नहीं कर सका कि इसको जब एक जगह बैठाएंगे, सब कुछ समझाएंगे तो हमसे भी हिसाब मांगना शुरू कर देगा। इसलिए तुम दूर दूर रहो। हम आलोचना नहीं करते, हम सभी श्रमिक संगठनों को कहना चाहते हैं कि ये सारे हम आप सब आपके लोग हैं, लेकिन आपके रहते हुए हमारी ये दुर्दशा हो गई है। हम जानते हैं, हम आरोप नहीं लगाते, हम मानते हैं कि आपसे अनजाने में सारी भूल हुआ है, आज से सुधार दीजिए। और कंपनी का जो नियम है, कंपनी ने जो हमारे वेलफेयर के लिए नियम बनाया है, उसके अनुसार हमको सब कुछ दिलाने में सहयोग कीजिए। हम कल भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ हैं, हम कल भी आपके साथ रहेंगे। हमारे सामने ऐसी स्थिति मत कीजिए, हमको ऐसा विवश मत कीजिए कि हम भी आपको ये मान लें कि आप हमारे साथ जो शोषण हो रहा है उसमें आपका प्रबंधन के साथ मौन सहमति है। मित्रों, आज का दिन आपसे मिलकर खुशी हुआ। मेरा 70 साल उम्र हो गया और मैं 24 साल से इंजीनियरिंग कर्मचारियों की सेवा में लगा हूं। हम थोड़ा सा और समय बचा है एक्टिव लाइफ, जब पूरा जीवन मैंने इंजीनियरिंग कर्मचारियों को दिया तो बाकी जीवन इसी को भी देने का मैं निर्णय लिया है और इसी काम में मैं लगा हुआ। एक बात जरूर कहेंगे, पूरे दिल से एक बात जरूर कहेंगे कि कुछ हो या ना हो, अगर किसी के साथ अन्याय करता है तो हमको हड़ताल पर जाने की जरूरत नहीं है। हम जनरल वर्कर नहीं हैं, ये मैकेनाइज माइंस है, हम टेक्नीशियन हैं। हम नाराज रहेंगे और कहे मेरा स्क्रू ड्राइवर बाएं घूमने लगा, परिणाम क्या होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अभी तक हम हर स्थितियों में दाएं घुमा रहे हैं। हमको मजबूत मत करो स्क्रू ड्राइवर बाएं घुमाने के लिए। हम हर स्थिति में, तुम कहते हो नियमानुसार सब कुछ होगा, आइन में जो लिखा हुआ है से आपको मिलेगा, तो नियमानुसार काम भी हमसे लो। आइन में जो काम लिखा हुआ है वो भी हम ही से लो। फिर वहां तुम आइन से बाहर क्यों जाते हो? तो अगर तुम आइन से बाहर जाते हो तो बाकी मुद्दे पर भी तुमको आइन से बाहर जाना पड़ेगा और हमारे साथ बैठकर समझौता करना पड़ेगा। हमको सम्मान देना पड़ेगा। संडे का लड़ाई चलेगा, ओवर टाइम का लड़ाई चलेगा, बीच बीच में पता चलेगा कि संडे के नाम पर हम बट गए। फिर एक ऐसी स्थिति आएगी कि कंपनी ने कुछ एकाध काम ऐसा किया कि फिर आंख मूंद के कोई नारा लगाने लगेगा, इनकलाब जिंदाबाद, सीएमए जिंदाबाद। क्योंकि ये पेशेवर यूनियन नहीं है, इसमें पेशेवर लोग नहीं है। आप किसी को सेक्रेटरी चुन दिया तो आपको चुन देने से क्या हो गया? हमारे पास जादू की छड़ी है कि उसको घुरा दिया और पूरा एक्ट रूल जितना है सबका उसका ज्ञान हो गया। किसी को चुना है तो उसको समझना पड़ेगा, वक्त लगेगा, समझेगा। तब तक क्या होता है, जब तक वो समझता है तब तक कहना नहीं ठीक काम नहीं कर रहा, अभी दूसरा को चुनिए, फिर तीसरा को चुनिए। मैं तो देख रहा हूं कि जीवन भर आप चुन रहे हैं और हम उसको बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मित्रों, आज के दिन में कजरा एरिया के साथी वैसे लोग जो लोग नहीं आए हैं उन तक हमको समाचार ये पहुंचाना है कि हम किसी के विरोध में संगठन नहीं बनाए हैं। ये संगठन हम अपने हित के लिए बनाए हैं, अपने कैटेगराइजेशन के लिए बनाए हैं,
अपने प्रमोशन के लिए बनाए हैं, अपने करियर ग्रोथ के लिए बनाए हैं। हम सबके साथ हैं। हम सबों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि इस मुसीबत के घड़ी में जहां हमारा शोषण हो रहा है, हमको साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, उसमें आप हमको सहयोग दीजिए। हम सबसे सहयोग मांग कर आगे बढ़ेंगे। और आप लोग जितने साथी हैं, अब जब सब टेक्नीशियन हैं तो फिर समझने और समझाने की कहां बात। सब लोग हमसे बेहतर आप समझ रहे हैं। फिर एक बार इन बातों को मैं दोहरा रहा हूं कि हम लोग आगे बढ़ें। कजरा एरिया को छोड़कर जहां भी दूसरे एरिया में आपके जान पहचान के लोग हैं, उनको फोन कीजिए, उनसे बात कीजिए कि काला बिल्ला लगा रहे हो कि नहीं, एकजुट हो रहे हो कि नहीं, कमेटी तुम्हारे यहां बना कि नहीं बना। अभी तो हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ठीक कर रहे हैं। आपने कभी कभी देखा होगा देहातों में आलू जिस खेत में हम लोग पैदा करते हैं, और आलू के खेत में जब हल से गेहूं लगाता है तो आगे आगे हल चलता है, पीछे से गेहूं डालते चलता है, और एक आदमी पीछे से रहता है, उसमें से भी कुछ आलू निकलते रहता है, वो चूमते रहता है। और जब तक उस खेत में गेहूं लगा तो पता चलता है कि शाम को उतना आलू जरूर हो जाता है कि 2-4 दिन का सब्जी हो जाए। तो अभी हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, अभी हमारे भाई जी ने कहा कि टेंडल को प्रमोशन हो गया, इसको प्रमोशन हो गया, उसको प्रमोशन हो गया। तो ये आलू के खेत में आप गेहूं लगा रहे हैं। मैन पावर बजट, अरे मैन पावर बजट सार्वजनिक चीज है, बनता है तो सब मजदूरों के पास इसका कॉपी होना चाहिए। क्या आपके पास कॉपी होता है आपके मैन पावर बजट का? अरे नहीं देगा तो आरटीआई के तहत देगा ना। कोई भी मजदूर 10 रुपए का चलान लगाकर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत इनका कोई भी दस्तावेज का मांग कर सकता है, और इनको मजबूरी होगा उसको देना। ये जो मैन पावर बजट को झांक कर रख रहे हैं, बक्सा में बंद करके रखते हैं, वो मैन पावर बजट को सार्वजनिक करो, ये हमारा मांग होना चाहिए। सबसे पहला मांग, आप कंपनी के यहां जाते हैं, पहला बात उसको कहिए कि 2021-22 का मैन पावर बजट सार्वजनिक करो। हम देख लेंगे उसमें हमारी क्या व्यवस्था है। मैन पावर बजट में अगर जगह नहीं है तो हम तुमको गाली नहीं देंगे, हम आगे बनवाने की बात करेंगे। लेकिन आगे साल ये भी हम देखने का काम करेंगे। बहुत यूनिट कहता है कि मैं तो प्रपोज किया, होता है कभी कभी, ये प्रपोज किया, हेडक्वार्टर काट दिया। तो हमको कम से कम लिस्ट दिखाओ कि तुम प्रपोज किया था कि नहीं किया था। अगर तुम किया था और हेडक्वार्टर काटा है तो हमारा झंडा और डंडा तुम्हारे यहां से उठ के उसके यहां चला जाएगा जो हमारा काटा। तो ये 365 दिन का काम है, हर साल का काम है। विशेषकर उन नौजवानों का जो 2 साल 4 साल में रिटायर होने वाले हैं, वो सोचते हैं मेरा तो हो जाएगा, लेकिन उन नौजवानों को समझना पड़ेगा। बहुत लोग कहते हैं इस बार तो मेरा चांस नहीं है, हम क्यों एनर्जी लगाएं। साधारण भाषा में आप समझ लीजिए कि आपसे अगर आपकी कैटेगरी में 4 आदमी सीनियर है तो उससे ज्यादा आपको जिम्मेवारी है कि जब तक वो आगे नहीं जाएगा, जब तक उसका सीट वैकेंट नहीं होगा, तो आप कहां जाइएगा। इसलिए हर नीचे वाला को काम है, हर जूनियर का काम है कि अपने सीनियर को ठेल के ऊपर करे कि उसका जगह खाली हो जहां हम जा सकें। ये मानसिकता बदलो। ये नहीं समझिएगा तो आप बहुत आदमी को देखा, हम गए थे ये आपका झंझा प्रोजेक्ट में, बैठे हुए थे, बहुत चकमक, पूरा 10,000 रेजिंग होता है, देखने में जाइए पूरा सूट बूट में सारे लोग दिखते हैं। हमको कहे थे वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जब बैठा तो एक आदमी बगल में बैठा हुआ था, एक बात आया तो बोला दादा रिटायर करने जा रहा है 4 महीना के बाद। बोले रिटायर करने जा रहा है? बोले हाँ। क्या डिजिग्नेशन है? बोले इलेक्ट्रिकल हेल्पर। आप समझिए मेरे ऊपर क्या गुजरा होगा कि पूरा जीवन वो इलेक्ट्रिकल हेल्पर में। तो आज भी ईसीएल में ये काला धब्बा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको डबल एसएलयू भी मिला हुआ है, डबल सर्विस लिंक अपग्रेडेशन भी मिला हुआ है इस ईसीएल में, और लोग रिटायर कर रहे हैं। इसलिए मित्रों, ओवर टाइम, संडे,
ये सब क्षणिक आनंद के लिए है। करियर ग्रोथ के लिए हमेशा चिंतित रहिए, इंडस्ट्री के लिए चिंतित रहिए। और जब इंजीनियरिंग कर्मचारी संगठित होगा तो इंजीनियरिंग कर्मचारियों से ज्यादा लाभ कंपनी को होगा। हम जिस मुस्तैदी के साथ अपने हित की बात करेंगे, हम उसी मुस्तैदी के साथ उस मशीन का भी बात करेंगे जिसमें हम काम करते हैं। सही ढंग से उसका मेंटेनेंस हो, सही ढंग से उसका संचालन हो, सही ढंग से उसकी सुरक्षा हो, सही ढंग का पार्ट्स दो। अब आप तुम हमको गलत पार्ट्स दे देते हो, एक ही काम को 5 बार करना पड़ता है, प्रोडक्शन भी नुकसान होता है। और एक ही चीज नीचे से करके ऊपर आए तब तक फिर फोन आया कि वो बेरिंग तो फिर टूट गया। तो बेरिंग तो 2 नंबर का था, उसको तो टूटना ही था, जितना दिन चल गया सो चल गया। इसलिए हमारा है कि हमको काम करने के लिए मैन पावर भी दो, टूल्स भी दो और अच्छे किस्म का स्पेयर पार्ट्स भी दो और काम करने के लिए अच्छा माहौल दो। हम टेक्नीशियन हैं, हम जनरल मजदूर नहीं है कि लाठी लेके तुम हमसे काम कराओ। हमारी मनोस्थिति ठीक नहीं रहेगी तो हमारा पेचकस पिलास घूमते रहेगा, हथौड़ी चलते रहेगा और एक बोल्टो 2 मिनट में भी खुलेगा और 2 घंटा भी लग जाएगा। ये बात कंपनी को समझना पड़ेगा। हम धमकाने नहीं आए हैं, हम उनको बताने आए हैं कि ये सारी स्थितियां हमारे साथ है, तुम संभलो इस बात को। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ये समय दिया। कलिया एरिया में 9 गो यूनिट है, 9 यूनिट में सब बैनर देखा, बैनर आप लोग लगाया है। ये बैनर अपने अपने ऑफिस में लगाइए, झंडा लगाइए, नारा लगाइए और अपना डिमांड का चार्ट बनाइए। आपको समस्या क्या है अपने अपने एजेंट को लिख कर दीजिए, एक एक एम्प्लॉय का समस्या लिख कर दीजिए। और खाली मशीन बनाने वाला से इतनी बड़ी आप लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, हमको मशीन चलाने वाला को भी सहयोग लेना पड़ेगा। और जब तक दोनों भाई बनाने वाले और चलाने वाले एकजुट नहीं होंगे तब तक एक पहले की कहावत है कि इसका पुली चक्का जाम नहीं कर सकते। हम मेहनत करके बनाते हैं, मेहनत करके बनाते हैं और ऐसे लोगों को मशीन चलाने के लिए दे देता है कि तोड़ के रख देता है, उसको ज्ञान नहीं। और वो आरोप हम पर आता है कि आप लोग तो मेंटेनेंस ठीक से कर नहीं रहे। इसलिए हम लोगों को जितने इंजीनियरिंग वर्कर्स हैं, लेट सवेर सबको बनाने वालों को, चलाने वालों को एकजुट होना पड़ेगा सबका। और ईसीएल के तमाम श्रमिकों को, वो इंजीनियरिंग कर्मचारी हो या ना हो, उनको भी मैन पावर बजट के विरुद्ध में उठ खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि मैन पावर बजट केवल इंजीनियरिंग कर्मचारियों के लिए नहीं बनता है, मैन पावर बजट तमाम श्रमिकों के लिए बनता है। इसलिए अंत में हम सभी संगठनों से, सभी मजदूरों से ये आग्रह करते हैं कि इस ध्यान आकर्षण आंदोलन में आप हमको समर्थन दीजिए। आपको याद होगा NCW 9 में कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था और सीटू ने हड़ताल की घोषणा कर दिया था पूरा इंडस्ट्री में, पूरा यूनियन उसको समर्थन नहीं किया था। लेकिन उस सीटू के घोषणा पर पूरा कोल इंडस्ट्री पूर्णतः बंद हो गई थी। तो सवाल वो यूनियन का नहीं था, सवाल वो मुद्दा का था। आज सवाल मैन पावर बजट इंजीनियरिंग कर्मचारियों के लिए है, ईसीएल के कर्मचारियों के लिए है, यह किसी यूनियन के लिए नहीं है। हमने इनकलाब बोला है, ये जिंदाबाद बोलने लायक इशू है। आपको जिंदाबाद बोलना चाहिए, मुस्तैदी से बोलना चाहिए। एक बार आप तमाम साथियों का क्रांतिकारी अभिनंदन। फिर कया एरिया के हर यूनिटों में मेरी जाने की इच्छा थी। मैं कहा था मैं सभी कोलरियों में जाऊंगा। लोगों ने कहा कि भाई आप जाएंगे तो एक जगह जाएंगे 8 बजे 9 बजे, बाकी लोग माइन के अंदर में चले जाएंगे। तो हमको लग रहा था कि आप जहां काम करते हैं वहां हम देखें, जहां घर है वहां आपको हम देखें। अब हमको फुटबॉल मैदान में यहां आप ला दिया, अब कल परसों हम आवेंगे तो हम फुटबॉल मैदान में खोजेंगे जब तक आपका घर नहीं दिखेंगे, जब तक आपका कोलरी नहीं देखेंगे। तो थोड़ा वक्त लगेगा, हम एक दूसरे को पहचाने। व्हाट्सएप ग्रुप कजा एरिया का बना हुआ है, ज्यादा से ज्यादा आदमी उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े। उसमें जो भी समस्या आपको होता है आप उसमें लिखें, आपको प्रॉपर सलाह दिया जाएगा। कोई भी सर्कुलर, किसी भी तरह का कागजात की जरूरत हो, आप उसमें सारी जानकारियां मिलेगी। हम आपको एक बार बधाई देते हैं।
आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं कि आप हमारे बीच आए। हमारे बीच जागरण के पत्रकार बंधु यहाँ हैं। मैं उनको बहुत बहुत संगठन की ओर से, आपकी ओर से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, इस आशा के साथ कि आपने हमारी समस्या को गंभीरता से सुना है। हम यह उम्मीद लगाए रखेंगे कि हमारी बातों को प्रमुखता से आप अपने समाचार पत्र में छपवाने का कष्ट करेंगे, हाईलाइट करने का कष्ट करेंगे। जय हिंद, जय सिमेवा। इंकलाब जिंदाबाद, तकनीकी एकता जिंदाबाद, तकनीकी एकता जिंदाबाद। कोल इंडिया के तकनीकी कर्मचारी एक हो, कोल इंडिया के तकनीकी कर्मचारी एक हो, कोल इंडिया के तकनीकी कर्मचारी एक हो, कजरा एरिया का तकनीकी कर्मचारी एक हो, कजरा एरिया का तकनीकी कर्मचारी एक हो, कजरा एरिया का तकनीकी कर्मचारी एक हो। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 सिमेवा जिंदाबाद, 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 मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय हिंद, जय सिमेवा।